खुशहाली भक्तजनों। आत्मा के अंदर छिपी हुई बहुत भारी खजाना है, एनर्जी है। वो एनर्जी बाहर आ जाती है, वो एनर्जी बहुत काम करती है। तो मैं पॉइंट। So today we will try to embark on that war or find a way to invoke the Shakti to win our inner battles. Right? So today you are sitting on a very different venue. Usually we meet in Gyan Yog Bhavan. Today you are sitting in Global Peace Auditorium. It is one of the crown jewels of our campus, Shanti Sarovar. It is and a big auditorium. You will also see a very beautiful show on Dashera here. We will have a live deity show and of course celebration of Dashera and Maharti. So today we are here because we also wanted to invite you to the Maharti celebration and Garba Dandiya after the talk. So that's why we are here. And Shanti Sarovar, of course you all know. I need not give an introduction, I hope. Anyone who has come for the first time? Here for the first time. Oh, wonderful. Great. So Shanti Sarovar is one of the biggest retreat centers of Brahma Kumaris across India. More so, it is the largest in southern India. And Brahma Kumaris, of course, is a worldwide socio-spiritual organization spread across 110 countries. You can see the map here. And we have centers across India, like 8,000 branches. And across the globe, you will find centers in all the continents. And small, big, such retreat centers are few, but there are many, and wherever you go, you'll find a space of peace, a space of purity to help you wherever you are. So Shanti Sarovar is here for you today, bringing being Shakti. And our today's speaker, let us invite on stage Brahma Kumari, Sister Arundhati ji. So Arundhati Didi, she is in this spiritual knowledge since 1994. So has been studying the knowledge that has been taught here in Brahma Kumari since her early ages. And 28 years ago, she decided she will dedicate her life to this spiritual path and now is a dedicated faculty. Currently, she is the in charge of the Brahma Kumaris branch in Kondapur near Masjid Banda. So it's very near to Aparna. Anybody from Aparna, they can visit her there. And she is also the state coordinator of the Brahma Kumaris Agriculture and Rural Development Wing. So Brahma Kumaris has 20 wings catering to different sectors, different professions, so that spirituality comes in a language that you understand, which challenges you face. So Didi caters to like very yogic kheti, and she has been cultivating different projects in Shanti Sarovar and in and around Andhra Pradesh and Telangana. So let us hear from Didi how to be Shakti. ओम शांति। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसे शक्तिशाली बनना है, बीइंग शक्ति, हमको शक्तिशाली बन कर के रहना। तो माँ दुर्गा को शक्ति कहते हैं और नवरात्रियाँ जो मनाते हैं, हर दिन एक एक नाम से माँ दुर्गा का ही पूजा होती है, उनका ही अलग अलग नाम है। फाइनली दुर्गा का ही होता है और रोज़ एक देवी के रूप में पूजा भी करते, उपवास भी रखते। कई लोग ये नवरात्रियाँ पूरा ही जागरण करते हैं, सारा ही रातों रात ना। शरद मास के इन नवरात्रियों को बहुत महत्व देते हैं। और फाइनली 10वां दिन असुरों का पूरा संहार हो गया, 9 दिनों का युद्ध समाप्त हुआ और 10वां दिन विजय प्राप्त किए असुरों पर, खास करके महिषासुर ना, भैंस ना, उसके ऊपर
जीत प्राप्त किए। तो दशहरा विजयादशमी, 10वां दिन 10th डे विजय प्राप्त किए, तो विजयादशमी एक तरफ बताते। तो दुर्गा माँ की क्या विशेषता होंगी जो असुरों का संहार करके इतनी सारी भारतवर्ष को असुरों से मुक्त किया, उनके जंजीरों से, उनके सितम से, जो भी समस्याएं उन लोगों से आ रहे थे उनसे मुक्त किया माँ ने। तो माँ के अंदर वो कौन सी शक्ति? वैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बड़े महान देवताएं हैं। उन त्रिमूर्तियों से भी नहीं हुआ असुरों का संहार, और तीनों ने मिलकर के दुर्गा माँ का रूप रचा और उनसे महिषासुर से सारे विश्व को, भारत को मुक्त कराए। तो माँ दुर्गा को अष्टभुजाधारी कहते, और 8 भुजाओं में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। कोई भुजा में खड्ग है, कोई भुजा में तलवार मना चक्र है, शंख है, पद्म है ना, त्रिशूल है। एक एक प्रकार का 8 प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं अष्टभुजाधारी माँ को। तो जब युद्ध किया, महिषासुर के ऊपर जीत प्राप्त किया, उसका संहार कर दिए, तो ज़रूर इन अस्त्र शस्त्रों को ही प्रयोग किया गया। शिव जी से पाशुपतास्त्र मिला और विष्णु जी से सुदर्शन चक्र मिला कहते। फिर ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र मिला, इंद्र से वज्रायुध मिला ना, ऐसा एक एक से एक एक आयुध मिला, वो सारे लेकर के गए, फिर युद्ध में जीत प्राप्त की। तो 8 भुजाओं में 8 अस्त्र शस्त्र लेकर के शेर के ऊपर शेरावानी होकर के गए और फाइनली जीत प्राप्त किए। 9 रात्रियाँ। देखिए वैसे ये 9 डेज दिन भी होता, रात भी होता, लेकिन कहने के लिए क्या आता? नवरात्रियाँ। 9 दिन नहीं बोलते, नवरात्रि बोलते। जैसे कि शिवरात्रि के दिन भी आज शिवरात्रि है बोलते, सुबह सुबह से ही आज शिवरात्रि है ना इसलिए हम उपवास नहीं खाते, आज शिवरात्रि है ना हम मंदिर में जा रहे, छुट्टी लगा दिए। तो ऐसा दिन में भी शिवरात्रि, रात के लिए भी रात्रि। वैसे ये नवरात्रियाँ भी है ना, दिन में भी नवरात्रियाँ बोलते हैं, रात में भी रात्रि। तो रात्रि का महत्व क्यों दिया? फिर संहार होने के बाद 10वां दिन विजयादशमी बोले, विजयादशमी रात्रि नहीं बोले है ना, दशहरा रात्रि नहीं बोले, विजयादशमी रात्रि नहीं बोले। सिर्फ ये 9 दिन जबकि युद्ध चल रहा था, विजय प्राप्त किया तो विजयादशमी, नॉट दशहरा रात्रि या विजयदशमी रात्रि नहीं। क्यों? युद्ध के समय को रात्रि, जीत प्राप्त किए तो विजयदशमी। क्यों? सेम 24 आवर्स, हाफ डे डे, हाफ डे नाइट, आधा आधा दिन और रात। क्योंकि हमारे अज्ञान का अंधकार में असुरों के, आसुरी अवगुणों के वश में चले जाते हम। सारी दुनिया, सभी मानव कोटि आसुरी अवगुणों के वश में जाकर के पीड़ित हो रहे। खास करके देह अभिमान, मैं शरीर हूँ, ये असत्य भ्रम है ना, ये भ्रम है, सत्य नहीं है। मेरा शरीर ये सत्य है, मैं आत्मा ये सत्य है, लेकिन मैं शरीर ये असत्य है। तो ये देह अभिमान है, देह अभिमान का अंधकार, जिससे अनेक आसुरी अवगुण निकले। सबसे पहले 5 आसुरी अवगुण निकले: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
ये पांचों विकार, विषय विकार, और इनके बहुत सारे बाल बच्चे, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, अनुमान, अभिमान, रोब, न आलस्य, अलबेलापन, झूठ, कपट, न बहानेबाजी, कई प्रकार के अवगुण है ना। एक दूसरे के साथ अनुमान से रहना, लेग पुलिंग करना, विघ्न डालना, दूतीपना करना ना, ये सारे कई सारे सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ अवगुण है, लिस्ट निकाले तो। डरपोक से रहना, टेंशन में जाना जल्दी, शॉर्ट टेम्पर से रहना ना, बहुत जल्दी टेंस हो जाते, जल्दी नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते, क्या हुआ होगा, शायद ये हो गया होगा, शायद वो हो गया होगा। जो हुआ होगा वही हुआ, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो पूरा नेगेटिव। ये सारे अवगुण हैं। अवगुण माना माइनस, माइनस माना रात्रि। तो ये रात्रि, इसके साथ हमारा युद्ध चलता है। अभी सिस्टर ने कहा कि विक्ट्री ओवर इविल है ना, गुड का बैड के ऊपर विजय, अच्छाई का बुराई के ऊपर जीत। तो जीत है तो फिर पहले युद्ध चला, वो युद्ध का समय ये नवरात्रियाँ। रात माना ही अंधकार, अज्ञान का अंधकार। जब हमारे अंदर अपने बारे में और हम जहाँ जिस धरती पर है, जिस सृष्टि पर है, इस सृष्टि का आदि मध्य अंत के बारे में, और हम सभी का पिता परमात्मा निराकार, जिसको शिव पिता कहते, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो ये अज्ञानता है। सबसे पहले अपने बारे में पता नहीं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ओरिजिनली, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं। तो ये अज्ञानता है। ये अज्ञान का अंधकार के कारण हमारे अंदर नेगेटिविटीज है ना, आसुरी अवगुण, ये सब आ गए। आसुर मना इविलनेस, वो सब आ गए। फिर उसके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए शिव शक्ति, शिव से साधना करके शिव शक्ति बनकर अस्त्र शस्त्र लेकर, अष्टभुजाधारी 8 अस्त्र शस्त्र लेकर के हाथ में शेरवानी बन करके निकल पड़ी असुर संहार करने के लिए। फिर वो क्या 8 अस्त्र शस्त्र, क्या हिंसा करते हैं देवियाँ? माँ दुर्गा, माँ है ना, दुर्गा देवी माँ ही करते ना, माँ ही कहते, माँ माँ करके पुकारते हैं, कीर्तन करते माँ माँ। फिर हिंसा करेंगे क्या? अस्त्र शस्त्र लेकर के। शिव शक्ति, ये हिंसा की बात नहीं है। हमारे अंदर के शक्तियाँ शिव से साधना करने से, शिव की आराधना से जो हमारे अंदर भराया जाता है, उन शक्तियों को ही अस्त्र के रूप में दिखाया गया। जैसे कि बाण है, धनुष है, तलवार है, खड्ग है, सुदर्शन चक्र है, त्रिशूल है, अनेक प्रकार के। तो हम ज्ञान खड्ग है और जौहर है उसका योग साधना। सुदर्शन चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का, सृष्टि नाटक का सुंदर चक्र का दर्शन, जिससे आत्मा के अंदर संपूर्ण रूप से आत्म ज्ञानोदय होता है। उससे देह अभिमान का अंधकार मिटता है। चक्र घुमाने के लिए पावर चाहिए, तो शिव शक्ति माँ दुर्गा शिव से साधना करके, आराधना करके, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करके निकल पड़ी। तो 8 शक्तियाँ अष्टभुजाधारी माँ, तो क्या क्या अष्ट शक्तियों को प्राप्त किए, जिसका यादगार में अस्त्र शस्त्र को दिखाए। नंबर 1, संकीर्णता की शक्ति, पावर टू विथड्रा। कर्म बंधनों में नहीं बंधना, कर्म संबंध में रहना, ये है पावर टू विथड्रा। ये बहुत बड़ा अस्त्र है
हमारे अंदर के अवगुण का असुर पर जीत प्राप्त करने के लिए, वो कोई भी असुर हो, आलस्य, अलवेलापन, बहानेबाज, ईर्ष्या, द्वेष, अनुमान, ना डरपोकपना, टेंशन, शॉर्ट टेम्पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 8 शक्तियों का अस्त्र शस्त्रों से हम एक एक असुरों का अवगुणों का संहार कर सकते हैं। तो पावर टू है ना विथड्रा, संकीर्णता की शक्ति। तो वो क्या है? कर्म बंधन से मुक्त, कर्म संबंध में रहना, वो एक बहुत बड़ा पावर। तो कर्म बंधन क्या है, कर्म संबंध क्या है? बंधन न बॉन्डेज, संबंध जस्ट कनेक्टिविटी, जस्ट कनेक्शन, नॉट बॉन्डेज। तो जब हम कर्म करते हैं, कर्म के साथ हम अगर अटैच होते हैं तो वो कर्म बंधन बन जाता है। जैसे कि कर्म का फल को फिर है ना इच्छुक होते प्राप्त करने का। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया तो अच्छा कमेंट मिलना चाहिए मुझे, शाबाशी मिलना चाहिए मुझे। मैंने बहुत अच्छा पेंटिंग किया या कुछ अच्छा डिश बनाया, कुछ बहुत अच्छा काम किया तो मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कर्म बंधन, किया हुआ कर्म का फल का इच्छुक रहना, इसको कहते हैं कर्म बंधन, है ना। पास्ट में एक हफ्ता हो गया, आपने कोई कंपनी में इंटरव्यू दे करके आए, उसका रिजल्ट निकलेगा 15 दिन के बाद। एक हफ्ता बीत गया और आपका मन वो बीता हुआ इंटरव्यू के साथ बॉन्डेड है। मैंने ठीक किया, नहीं किया, सब बराबर तो किया मैंने। फिर नेक्स्ट वीक आने का जो रिज़ल्ट है उसके साथ फिर अटैच्ड है, क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या रिज़ल्ट निकलेगा। तो पास्ट में भी बॉन्डेड, फ्यूचर के साथ भी जो रिज़ल्ट निकलने का उसके साथ भी बॉन्डेड, बंधी। किया हुआ कर्म मन बुद्धि को खींचती है, कैसे किया उसका और क्या निकलेगा रिजल्ट उसका। क्योंकि फलापेक्षा, किया हुआ कर्म का फल का अपेक्षा, तो प्रतिफलापेक्षा, ये कर्म बंधन में बांधती है, इसको कहते कर्म बंधन। कर्म संबंध क्या है? कर्म बंधन में एब्सेंट माइंड हो जाते है ना, या तो पास्ट के साथ रह रहे, या तो फ्यूचर का इल्यूजन, एक क्वेश्चन मार्क का हो या कुछ ड्रीम्स का हो ना, उसमें प्रेजेंट में नहीं है तो एब्सेंट माइंड हो गए ना, प्रेजेंट में एब्सेंट हो गए। तो ये सही बात है। कर्म बंधन इटसेल्फ वो एक नेगेटिव है, तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दे सकती? नहीं, तो वो एब्सेंट माइंड बनाएंगी। अब फिर देखो कर्म संबंध क्या है? जो कर रहे हैं उसके ऊपर मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति, है ना, पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड से पूरा करेंगे। जो भी कार्य कर रहे, आप कुछ पढ़ाई कर रहे या कुछ काम कर रहे या खाना बना रहे, गार्डन का काम कर रहे, वॉकिंग कर रहे, जॉगिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे, खाना खा रहे, कुछ भी, उसको ही देखते हैं आंखों से, उसका ही स्वाद लेते रहते, स्मेल लेते रहते ना, कुछ भी कर रहे, उसके साथ आपका इंद्री, आपका मन, बुद्धि है ना प्रेजेंट में रहेंगे, है ना, फुल प्लेज्ड आप वो कार्य करेंगे डेडिकेशन से, फुल प्लेज्ड ना, विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड। हो गया, काम हो गया, फुल स्टॉप। उसके बारे में आप एक सोच भी नहीं चलाते, एक सोच भी नहीं चलाते, डिटैच्ड। पावर टू विथड्रा, पावर टू विथड्रा। किया, भूल गए, उपकार किया, भूल गए, बहुत अच्छा डिश बनाया, भूल गए खिला के। प्रतिफलापेक्षा का इच्छा नहीं, किसी का अप्रिशिएशन चाहिए, मेरे को कुछ कमेंट चाहिए पॉजिटिव, तो वो इच्छा नहीं। कर्म करते समय अगर ये इच्छाओं के साथ वो खा रहे, ये ना, ये आने वाले, वो आने वाले, है ना, ये करेंगे तो बहुत अच्छा ये होगा रिजल्ट, वो सारी बातों का फ्यूचर के साथ, मनुष्यों के साथ अटैच होकर के काम कर रहे, नॉट फुल प्लेज्ड। आपका कार्य फुल प्लेज्ड नहीं चल रहा,
कर्म बंधन है वो। कर्म बंधी आत्मा कर्म के साथ अटैच हो जाते, फिर कर्म पास्ट हो गया तो मेरा मन बुद्धि उसी के साथ अटैच्ड है। आज का दिन में मैं पहुंच गया, मेरा मन बुद्धि उसी पास्ट एक्टिविटी के साथ बॉन्डेड है, तो प्रेजेंट में मैं एब्सेंट हो गया, एब्सेंट माइंडेड। तो कर्म बंधन नुकसान करती है। तो एट प्रेजेंट जो ग्रास्प करने का, जो हमको सुनने का, करने का, वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि कर्म बंदी हो गई, या तो पास्ट या तो फ्यूचर से बॉन्ड हो गई। कर्म संबंधी किया, भूल गया, करते समय फुल प्लेज्ड, उसका प्रतिफलापेक्षा का इच्छुक नहीं रहेंगे। तो ये है कर्म संबंध। तो पावर टू विथड्रा, तो ये कैसे आएगा अपने को, अपने अंदर ये पावर कैसे आएगा? मतलब बात को आप फुल स्टॉप लगाना, वो है विथड्रा होना। कामा लगाना कंटिन्यूएशन। तो फुल स्टॉप पॉइंट होता है ना, फुल स्टॉप ना पॉइंट, पॉइंट कैसे लगा सकते? तो वो पावर साधारण नहीं। एक किताब में पेंसिल से पॉइंट लगाओ इजी, पेन से ऐसे पॉइंट लग, बहुत इजी मात्रा है वो। क्वेश्चन मात्रा, एक्सक्लेमेटरी मात्रा, कोई लेटर बहुत मुश्किल है, घुमाना पड़ता। और फुल स्टॉप की मात्रा बहुत सिंपल, बच्चे भी लगाएंगे, ऐसा करो आ गया। तो बहुत सिंपल है लिखने के लिए, लेकिन मन में कोई बात को, कोई इश्यू को, कोई बहुत बड़ा इश्यू भी चला, फुल स्टॉप लगाना इजी है? इजी है? किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ, किसी ने आपका अपमान किया, कुछ आपने जो कुछ एक्सपेक्ट किया वो हुआ नहीं, बहुत बड़ा बात बन गया था, तो उसको फुल स्टॉप माना कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेशन में चलो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये इजी मात्रा, बहुत इजी मात्रा, लेकिन इजी है प्रैक्टिकल लाइफ में लगाना, मुश्किल है। क्यों? उसके लिए पावर चाहिए, विल पावर। वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब हम अपने को पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, जब ये समझेंगे फिर मानेंगे। पहले समझना, जानकारी, नेक्स्ट उसको मानना, फिर उसके अनुसार चलना ना, जानना, मानना, चलना। जब ये होता है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट प्राण हूँ, आत्मा हूँ, एक सूक्ष्म बिंदु हूँ, पॉइंट, आई एम एक ना पॉइंट लाइट, प्राण हूँ। वो प्राण में निकल गया तो मेरा शरीर डेड बॉडी बन जाएगा, तो उसको फिर ना अंतिम संस्कार कर देते। मैं निकल गया, मैं कौन निकला? बॉडी को सुलाया, बॉडी को ले जाकर क्रियाकर्म किए, और मैं निकल गया उसमें से। मैं निकल गया करके सब लोग रो रहे, ये चली गई, ये चली गई करके रो रहे। मैं निकल गया, बॉडी को जला रहे, उनके सामने पड़ा है, वो रो रहे। तो मैं कौन चला गया? मैं आत्मा, पॉइंट, प्राण। प्राण एक सूक्ष्म बिंदु, तो उस बिंदु स्वरूप में स्थित हो करके अपने आप को एक्सपीरियंस करना, दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। मैं अपने को फीमेल, मेल, हिंदू, मुस्लिम, बूढ़ा, बच्चा, एक डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, रिटायर्ड हूँ, ये समझना बॉडी कॉन्शियस। मैं वाइटी हूँ, मैं ब्लैकी हूँ, ये बॉडी कॉन्शियस है। मैं एक स्टार, न स्त्री न पुरुष, न बच्चा न बूढ़ा, न हिंदू न मुसलमान, न वाइटी न ब्लैकी, एक स्टार। अभी आकाश के तारों को आप डिवाइड कर सकते, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ऐसा है? स्त्री पुरुष का ऐसा कुछ भेदभाव है? भाषा का, रंग का ऐसा कुछ भेदभाव है? कुछ भी नहीं। वो मैं हूँ, आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट, प्राण हूँ। जब हम निकल जाते उसको जला देते, और वो प्राण ही है, एनर्जी, इट्स एन एनर्जी, एक शक्ति है। उसकी अनुभूति जब हम करते हैं, आत्मानुभूति, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, अपने आप को जब अनुभूति करते, आत्मानुभूति होती है,
तो अनुभूति में बहुत एनर्जी बाहर आती है। आत्मा के अंदर छिपी हुई बहुत भारी खजाना है, एनर्जी है, वो एनर्जी बाहर आ जाती है, वो एनर्जी बहुत काम करती है। तो मैं पॉइंट ये अनुभव किया तो हर बात को पॉइंट लगाने का वो विल पावर आ जाता। तो पॉइंट लगा दिया, फुल स्टॉप, नेक्स्ट सेंटेंस, अभी नेक्स्ट फेस में आ गया मैं, नेक्स्ट डायलॉग जो अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट में वो हो गया, वो गया। कर्म संबंधी बनकर चलते रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, हर घड़ी प्रेजेंट। एक्चुअली एवरी सेकंड इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट मीन्स एक प्रेजेंटेशन, गॉडली प्रेजेंटेशन। कोई छोटा बच्चा आकर बर्थडे करके आपको एक छोटा सा चॉकलेट, 2 रुपये का 3 रुपये का चॉकलेट प्रेजेंट किया, आप खुश होते ना? आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो 2-3 रुपये के 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुश होते कोई कुछ प्रेजेंट किया तो भगवान हर घड़ी हर पल को, प्रेजेंट टाइम को प्रेजेंट करते जा रहे। हम प्रेजेंटेशंस लेते रहेंगे तो कितना खुश रहेंगे। एवरी सेकंड हम खुशहाल से रह सकते हैं, प्रेजेंट में रहे, उसके लिए कर्म संबंधी बन कर के रहे। तो कर्म बंदी बनकर रह रहे, प्रेजेंट में एब्सेंट हो रहे, फिर जो प्रेजेंटेशंस दे रहा भगवान सारे लॉस। तो कितने प्रेजेंटेशंस ले पाते दिन भर में, आप सोचो एक बार। कितने भगवान 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स प्रेजेंटेशंस दे रहे। इतने हमने कितना प्रेजेंटेशंस पॉकेट में डाला दिन भर में, चेक कर सकते। तो प्रेजेंटेशन मिला तो खुशहाल का जीवन अपना बनेगा। दुख का, अशांति का, बीती बातों का तड़पन, डर ना, उसका एक पीड़ा, दुख, वो सारे आसुरी अवगुण निकल जाएंगे। फुल स्टॉप लगाया, कामा नहीं लगा रहा। तो पावर टू विथड्रा, बहुत बड़ा पावर है ये, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले। जब तक आप बंदी बन के रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ सकते? चैन से बांधा हुआ आप लिबरेट हो गए तो कदम आगे बढ़ेंगे, कदम आगे बढ़े तो प्रोग्रेस में जा सकते। तो कई मौके अपने लिए खुल जाते, कई चांसेस, अपॉर्चुनिटीज अपने लिए रास्ता बनाएंगे। वो दिन आ जाता है, लेकिन मैं अपना बॉन्डेजेस को छोड़ दूँ। तो कर्म बंदी से कर्म संबंधी बनना, ये है पावर टू विथड्रा, संकीर्णता की शक्ति फर्स्ट। फिर नेक्स्ट है पावर टू पैकअप, है ना, समेटना, समेटने की भी शक्ति चाहिए। विस्तार को सार में ला सके, सार को विस्तार में ला सके। जब चाहिए तब पेटी खोलो, सब खोल दो, अच्छी तरह से यूज़ करो, फिर पैक करो, अच्छा सा सॉर्ट आउट करके एकदम एसेंसफुल बनाकर रख दो, फिनिश। विस्तार सार, जब जो चाहिए वैसा कर सके। हमेशा ही पैक्ड है, आपको क्या काम का, किस काम का वो पेटी? पेटी के अंदर जो है वो, है ना, हमेशा पैक्ड ही है, सील्ड, कोई काम का नहीं है, ऐसा भी नहीं। और खुलाई करके रख रहे, आपको कहीं जाना तो मुश्किल, कोई आके देखे तो अच्छा नहीं लग रहा, है ना। सार में भी रह सको, विस्तार में भी रह सको, आ सको, ये है पावर टू पैकअप। जो भी हम पाठ सीखते हैं बीती समय से, जीवन में जो कुछ भी होता है, उन लेसन्स को ले लेना, समा के रख लेना, समेट के रख लेना। जब सच में ज़रूरत है, उस लेसन्स को इम्बाइब करके सिर्फ प्रेजेंट में अच्छा डिसीजन लेने के लिए यूज़ करो बीती बात को। उसके लिए खोलो, सबको प्रोपेगेंडा करने के लिए, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, या ऐसा हुआ, आपको पता ये हुआ था, ट्रेन में ऐसा हुआ था। तो ये सारी बातें खोल के, बोल के सबका टाइम भी बर्बाद, खुद का टाइम बर्बाद, वाचा भी वेस्ट, समय भी वेस्ट, क्या फ़ायदा? एनर्जी, टाइम, एनर्जी, है ना, वाचा सब वेस्ट। ये नहीं, खोल के ही रखो, ये भी अच्छा नहीं लगता। पसारा किसी के घर में गए, देखे, अच्छा लगता नहीं। एसेंसफुल में रहना, जब चाहे तब खोलो, यूज़ भी करो, फिर समेटो। तो बीते समय का बातों का
जब ज़रूरत है तब वहाँ से ले लो, यूज़ करो। जो मिस्टेक हुआ वो मिस्टेक अभी मेरे से नहीं होना चाहिए, उसके लिए निकालो। बाकी खोद खोद के उसके अंदर इंडल्ज होकर के दुखी होकर रहने के लिए नहीं, निकालो। अब गफलत नहीं हो, आगे बढ़ो, फिनिश। फिर उन बातों का विस्तार में नहीं जाना। सार को विस्तार, विस्तार को सार में करने का पावर, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। इसमें अपने अंदर अगर ये शक्ति अपने अंदर आ गया तो क्या होता, आलस्य अलबेलापन टाटा बाय बाय करेंगे। ये दोनों जुड़वे असुर है, आलस्य और अलबेलापन, तो ट्विंस असुर है ही भी तो दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। आलसी को कुछ काम बोलो बहुत दूर भाग जाता, बहुत दूर है उनके लिए। अलबेले को कोई काम बोलो वो कर सकता लेकिन पेंडिंग करता रहेगा, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, वो पेंडिंग करता रहेगा। कर सकता हो, कर सकते, कैपेसिटी है लेकिन करेगा नहीं। अलबेला आलसी करेगा ही नहीं वो उनको डर लगता है, वो काम करने के लिए डर लगता है उनको, लो वेरी लो कॉन्फिडेंस। इनको कॉन्फिडेंस है लेकिन यूज़ नहीं करता है, दोनों को नुकसान है। आलस्य अलबेलापन भाग जाएंगे जहाँ पावर टू पैक पे। तब क्या होता, जब पेटी बिस्तर तैयार है, एकदम एसेंसफुल फॉर्म में है, तो समय बहुत सुंदर सुंदर चांसेस हर प्राणी को देती, हर मनुष्य को देती है। किसी के लिए पार्शियलिटी, किसी के लिए इम्पार्शियल, ऐसा नहीं है। समय हर एक को चांस देती है। जिसने आंख बंद करके सो रहे, उसके सामने से बहुत अच्छा मौका लेकर के समय जा रही, वो फरिश्ता को कोई देख रहे नहीं, वो एंजल को कोई देख रहे नहीं। और जिसने जाके तैयार करके फ्रेश होकर, है ना, सूट बूट पहनकर सब पूजा पाठ सब करके पेटी पकड़ के बैठा है, उसके सामने से एक फरिश्ता ही चांसेस लेकर के तुरंत ले लेगा वो मौका, आगे बढ़ेगा। तो सार को विस्तार में, विस्तार को सार में लाने का पावर जिसके अंदर है वो एवर रेडी रहता है, एवर रेडी। कब भी कुछ भी जो भी चांस मिले वो ले लेता, आगे बढ़ जाता, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करता। उनको दिखता है अपॉर्चुनिटीज़, और ये सोने वालों को दिखता भी नहीं, और इधर उधर खेल पाल में रहने वालों को भी नहीं दिखेगा। उनके सामने से भी पास हो रही, सोने वालों के सामने से भी पास हो रही, और जाग करके तैयार होकर के बैठा है और उनके सामने आए तो तुरंत पकड़ लिया। ये एक्टिव अलर्टनेस आ जाते और आगे बढ़ते हैं, वो सेकंड पावर। तो और दो असुरों का संहार हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट थर्ड में आओ, यहाँ पर पावर टू टॉलरेट, टॉलरेंस का सहन शक्ति। सहन शक्ति माना कई लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या है, कोई कुछ भी बोलता रहे, पीते रहो, लेते रहो, चुप रहो, चुप रहो, चाहे डिप्रेशन में भी चले जाओ लेकिन कुछ भी नहीं बोलो। ये है टॉलरेंस इज ए वर्च्यू। सहनशीलता एक वैल्यू है, एक क्वालिटी है। क्वालिटी किसी को डिप्रेशन में ले जाए, वो पॉजिटिव कैसे हुआ, वो तो नेगेटिव हो गया। अगर मच्छर आके काटा तो मच्छर अच्छा ही गया, तो बीमार हो गए, तो बीमार लाने वाले तो अच्छे नहीं हैं। तो कोई बात मेरे को ऐसा कर रही तो वो वैल्यू कैसे हुआ, नहीं हो सकता। फिर ब्लास्ट होना क्या, वो भी खराब बात है। चुप रहो, अंदर ही अंदर, है ना, निगलते रहो, पीते रहो, चुप रहो, बेर करो, ऐसे ही, वो भी ठीक नहीं। ठीक है, मैं ब्लास्ट हो जाऊं, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी डिसमैनर से, मर्यादा नहीं है। फिर क्या करना, अंदर भी नहीं लेना, बाहर भी आउट नहीं होना, ब्लास्ट नहीं होना, फिर क्या करूं। टॉलरेंस इज ए पावर, पॉजिटिव, वो एक अस्त्र है, वो एक शस्त्र है। फिर क्या करना, सिंपल, उन बातों को लेना ही नहीं अंदर, जो अंदर पीते रहे, है ना, अंदर ही अंदर रख ले, डिप्रेस हो, सप्रेस हो, ज़रूरत नहीं। ब्लास्टिंग की बात ही नहीं, अंदर ही नहीं आए मेरे को, मैंने लिया ही नहीं, तो ब्लास्ट करने का भी नहीं, डिप्रेस होने का भी नहीं, कुछ भी नहीं, बात ही नहीं। मेरे अंदर आना ही नहीं वो बात, कानों में आया, आंखों के सामने आया, इससे भी इंफॉर्मेशन मिला, इससे भी इंफॉर्मेशन मिला, इंफॉर्मेशन तक है, मेरे दिमाग को खराब नहीं किया।
रिजेक्ट, डोंट एक्सेप्ट। नेगेटिविटी को स्वीकार करना ही नहीं, इतना पॉजिटिविटी का पावर अपने अंदर होना चाहिए। रेती में आप बॉल डालो, एक बॉल फेंको, पकड़ लेते अच्छी तरह से, टप करके आएंगे क्या पीछे आपके पास? वही दीवार को मारो, वापस ये सॉलिड है, वापस आ गए, अंदर नहीं गया, दीवार के अंदर नहीं गया, वो रेती के अंदर चला गया, नरम नरम है ना, उसके अंदर फंस गए, वो वापस नहीं आता। हम अंदर से बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। विल पावर से हम क्षमा का शक्ति को डेवलप करेंगे तो नेगेटिविटी को लेंगे ही नहीं, वो निकल जाती, मतलब वापस चली जाती। इन सुनाई दिया, दिखाई दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा, बात खत्म। ये है सहन शक्ति, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। वो एक पावर है जिसमें क्षमा की शक्ति होती। जैसे कि मैंगो क्वालिटी बोलते इसको हम, मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट्स। क्यों? क्यों राजा, फलों का राजा? क्योंकि बाहर से बहुत नरम भी है, पल्पी भी है, बहुत अच्छा सुगंध भी है, टेस्टी भी है ना, पील कर सकते, काट सकते, अच्छा सा पेट भर सकते, लेकिन गुठली को कुछ कर सकते नहीं, उसके अंदर को कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत मिठास देंगे, सुगंध देंगे, पेट भर देंगे, लेकिन खुद को कुछ नहीं होता। वो है हम अंदर से एकदम पावरफुल बन करके रहना। जो कोई कुछ फेंके तो वापस चला जाए, हमको कोई, हम अपकारी को उपकार भी करेंगे। मैंगो ट्री को किसी ने, बच्चे ने पत्थर मारा तो पत्थर है ना वापस आ जाती, फल भी दे देती। झाड़ क्या करती? फल दे रही, लेकिन पत्थर को नहीं रखती। तुम्हारा पत्थर मुझे नहीं चाहिए, मेरा फल तुम ले लो। अपकारी को उपकार करने की भावना क्षमा से होती है। उतनी क्षमा की भावना है जो उनका पत्थर भी स्वीकार नहीं कर रहे, फल भी दे रहे अपकार किए। तो अगर पत्थर रख लिया, समझो झाड़ ने बच्चे का पत्थर रख लिया, तो फिर क्या सोचेंगी? तुम मेरे झाड़ के नीचे बैठोगे ना, तब मैं फेंक दूंगा तेरे सिर पे। तुम जब यहाँ पर आना जाना करोगे ना, मैं फेंक दूंगी तेरे सिर पे। सोचेंगे फिर क्यों आया ये संकल्प? मैंने रख लिया तो फेंकेंगे भी। मुझे चाहिए ही नहीं तुम्हारा पत्थर, मेरा फल भी तुमको ले लो। ये है क्षमा का गुण, रखना नहीं मन में, लेना ही नहीं। वो है सहनशीलता। फिर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, तो जितना हम एडजस्ट होके रहेंगे, जितना मोल्ड हो करके चलेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, रियल गोल्ड बन जाएंगे एक दिन। क्योंकि मोल्ड होते 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 कई लेसन्स मिलेंगे, कई पाठ मिलेंगे, कई प्रकार के प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, मैच्योरिटी बढ़ती जाएंगी। जितना पाठ पढ़ेंगे उतना बड़ा क्लास में जाते ना, 5th 6th 7th 10th इंटर डिग्री है ना, जितने पाठ पढ़ते जा रहे, पास होते जा रहे, आगे भी बढ़ रहे, तो नेचुरली मैच्योरिटी बढ़ गई। बहुत सारे पाठ हैं। तो जितना हम अपने को मोल्ड करते जाएंगे, टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, एडजस्ट होंगे और दूसरा चिल्लाएंगे नहीं, तो हम बहुत प्यूरिफाइड रियल गोल्ड बनेंगे। तो मोल्डिंग में ये नेचर है रियल गोल्ड बनने का। कहीं पर भी संघर्ष नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कलह क्लेश में नहीं आना चाहिए। जैसे कि पानी ना, नदियाँ कहाँ से, पहाड़ों से, हिमालयों से झरने आते आते समुंदर में गए तक वो रुकती नहीं। उनका डेस्टिनी है समुंदर, पैदा होती कहीं पहाड़ों पर, हिमालय कहीं पैदा हुआ। तो इतने बीच में रास्ते में कितने परीक्षा उनको आती है, कितने पहाड़ सामने खड़े हैं, तो वो क्या किसी पहाड़ के साथ टकरा करके खड़े हो जाती क्या? हे पहाड़ थोड़ा हटो, मैं सीधा सीधा चले जाऊंगी। आप इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, मुझे कितने यू टर्न करने पड़ रहे हैं, आपको पता है कितने यू टर्न करना पड़ रहा? इतना लंबा हो गया मेरा रास्ता, बहुत लंबा हो रहा मेरा यार रास्ता, मैं तो मुझे जाकर समुद्र में मिलने का है। आप ऐसे घट से खड़े हो गए, थोड़ा है ना सरक सकते तो शॉर्टकट में जा सकता, बोलती है। नो एक्सपेक्टेशंस। एडजस्टमेंट में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रहता।
अपने को मोल्ड करते जाओ, अपना रास्ता निकालो, आगे बढ़ो। बाकी नो एक्सपेक्टेशन, नो कलकलेश, नो फाइटिंग। अगर पहाड़ के साथ नदी है ना एक्सपेक्ट करके बैठ गए, समझो बैठ गए एक्सपेक्ट करके, तो क्या हो जाता, सारा इलाका डूब जाता। नदी अगर आगे नहीं बढ़ी तो क्या हो जाता, डूब जाते। कितना बड़ा नुकसान। अगर वो विदाउट एक्सपेक्टेशन मेरा रास्ता जैसा है, स्लोप जहाँ है वैसा चलते रहो करके वो चले गए, तो जितनी लंबी यात्रा करेंगे उतना खेती बाड़ी के लिए, उतने किसानों के लिए, उतने जीव जंतु के लिए, इतने ग्रामों के लिए, नगरवासियों के लिए वो लाभदायक होती है। जितनी लंबी यात्रा उतनी दुआएं, थकेंगे नहीं। फिर जब दुआएं मिल रही तो थकेंगे नहीं। इतना लंबी यात्रा करना पड़ रहा है ये पहाड़ों के कारण, ये हाइट्स के कारण। वो बद्दुआ नहीं दे रही, इन लोगों का दुआएं कमा रही। नो एक्सपेक्टेशंस, वो है रियल एडजस्टमेंट। एडजस्ट होते जाना, होते जाना है ना। एक छोटी सी कहानी बताती इसमें, इसी पर एक है ना, एक बार सोना और पीतल ना, दोनों येलो कलर रहते ना, तो दोनों का डिस्कशन चल रहा, सोना का और पीतल का। पीतल रोते रोते सोने से पूछती है, देखो सोना, ये मनुष्य बहुत बेईमानी है। क्या हुआ, आपके साथ क्या किया, क्या बेईमानी किया? तो बेईमान नहीं तो और क्या है, देखो तुम भी लोहा मैं भी लोहा, तुम भी पीला मैं भी पीला, तुमको भी मारते मेरे को भी मारते, तुमको भी भट्टी में डालते मेरे को भी भट्टी में डालते, फिर ये क्या बेईमानी का काम करते? आपका इतना महंगाई और मेरा इतना कम दाम, और आपको पहन करके क्या प्राउड फील करते, सबको दिखाते, घर में आने वालों को खोल खोल के दिखाते, फिर काम होने के बाद कितना अच्छा कपूस में रख के, अच्छा सा अलमारी में रख के, बहुत संभाल के रखते, प्राउड फील करते। आप घर में आए तो प्राउड फील करते रहते, और मेरे को पानी भरने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसके लिए उसके लिए यूज़ करते, थाली के रूप में, ऐसा भगोने के रूप में, है ना, बर्तन के रूप में। हो गया तो कमरे में डाल देते साफ सफाई करके, कोई आए तो दिखाते नहीं, मैं घर में हूँ करके प्राउड भी नहीं हूँ उनको। तो मेरे साथ बहुत बेईमानी हो रहा, ये मनुष्य अच्छा नहीं है। तो ये ठीक है उसका जो दर्द है, दुख है, वो ठीक है। क्यों? फिर ऐसे ही हंसती है सोना भी बोलती है, देखो आपने जो बोला सब सही बातें बोला, लेकिन मैं दो प्रश्न पूछती हूँ, जवाब देना। तो पूछती है, जब आपको है ना मार रहे थे, है ना, भट्टी में डालने के बाद शेप लाने के लिए मार रहे थे, मेरे को भी मारते, आपको भी मारते, लेकिन आपको मारते समय आप कैसे आवाज़ करते और मैं कैसे आवाज़ करती हूँ? सोना पूछा। तो फिर ये बोलती कि मैं थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करती हूँ, चिल्लाती हूँ तो फिर ये बोलती हूँ, देखो जिस शेप में लाने के लिए मारने का है उनको मारता रहेगा, फिर हमको मार खानी पड़ती है उस शेप में मोल्ड हुए तक, उनको मारना ही, हमको मार खाना ही। तो जब ये फिक्स्ड है तब तक वो नहीं छोड़ेंगे, ये मालूम है, तो क्यों चिल्लाते हो? मार खाओ चुपचाप, मोल्ड होना ही है, तब तक वो मारेंगे, जब तक हम मना वो शेप नहीं आया तब तक। तो अंडरस्टूड है तो फिर क्यों चिल्लाते हो? मुझे ही करना क्या, मैं ही मिला क्या इनको? इतना डेडलाइन दे करके करने वालों से कराते रहते, मैं ही मिला इनको सब कुछ, मतलब करना ही पड़ रहा, सब समेट के ही, जिस टाइम पर सोने का उस टाइम पर ही सोने का कंफर्म है, क्यों चिल्लाते हो? तो ब्रास बन गए। एक्सेप्ट कर, मुझे ही करना, शांत, काम काज कंप्लीट करो, क्लोज करो, आराम से सो जाओ। एक्सेप्टेंस, तो वैल्यू बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया। और ये चिल्लाते चिल्लाते कर रहे कंप्लेंट्स, इसका दाम कम हो गया। और फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं सोना, देखो पीतल जितना ना शेप लाते समय जितना पतला मुझे ना सोना जो करते हैं, खींचते उतना पतला क्या आप है ना खींचतान में आते क्या, खींचने में आते क्या? जैसे कि धागा जैसा, बाल जैसा, बाल में भी
10th पार्ट जितना भी पतला मुझे खींचते मैं ओके ओके करता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीच में टूट जाता हूँ मैं। देखो, नो ओबीडियंसी, यस बॉस करते, ऐसा करते करते जब औरंगजेब बादशाह का एक बार जन्मदिन हुआ तो उस समय पर एक सोनार, एक कॉइन सोने से शॉल बना करके राजा के लिए, बादशाह के लिए शॉल बनाकर, नेचुरल शॉल जितना साइज उतना मैच बॉक्स में रख करके प्रेजेंटेशन दिया और उसको पोतली भर के गोल्ड कॉइन्स मिला सोनार को। लेकिन ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, स्किलफुल, टैलेंटेड सोनार, बहुत अच्छा। लेकिन वो सच्चा सोना देखो क्या वंडरफुल है, इतना पतला खींचे तो यस बॉस यस बॉस यस बॉस, कहीं पर टूटी नहीं, वो इतना बड़ा शॉल जैसा बन गए और सच में ओढ़ने जैसी सुनहरी शॉल। तो वो है 24 कैरेट्स का रियल गोल्ड का मोल्डिंग, हाईएस्ट मोल्डिंग, सबसे सभी लोहों में से हाईएस्ट मोल्डिंग 24 कैरेट्स का, नॉट 22, 21, 19, आजकल 9 कैरेट्स का, नहीं 1 ग्राम भी आ गए ना आज तक। तो इसका नहीं, मोल्डिंग नेचर 24 कैरेट्स का रियल गोल्ड। तो वो, तो ये 2 प्रश्नों में फिर वो चुप हो गए। फिर बताएं कि सही बात है, इसलिए आपका दाम इतना बढ़ गया, इतना आपका वैल्यू है, जो देश का राजा के सिर पर मुकुट के रूप में आप बैठते हो। राजा बड़ा, राजा के सिर पर इसको बिठा दिए, वंडर है ना। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया कि राजा के सिर पे मुझे बैठना, लेकिन बिठा दिए। सोने का ही लगाना पड़ता है मुकुट, क्राउन, वो स्थान उनको मिल जाता, इतना वैल्यूबल। कब? एक्सेप्टेंस, शांत, शीतल, एडजस्ट होके चलो, नो एक्सपेक्टेशंस। ये दिल में लिख लो, नोट्स में नहीं, दिल में लिख लो। सामने वालों से कभी कुछ भी एक्सपेक्ट करना ही नहीं। जैसा रास्ता मिलता वैसा अपना रास्ता ढूंढ के निकलो, आगे बढ़ो। कितना भी लंबा यूटर्न कर, वो जाके मिल जाएंगे उसमें, समुद्र में। थोड़ा लेट, अच्छा है, दुआएं मिलेंगी। कई लोगों को उपकार करते हुए रुक गए तो बाढ़ आ जाता, डूब जाएंगे सभी। तो नो एक्सपेक्टेशन, आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। देर हुआ तो भी अंधेर नहीं हो सकता, जाकर के मिल जाएंगे, डेस्टिनी पहुंचेंगे। कई सारे लेसन्स, बहुत मैच्योरिटी, बहुत सहनशीलता, बहुत ना एडजस्टमेंट, शीतल रहेंगे। ये पावर, ये बहुत बड़ा वेपन है। इससे रिवेंज का असुर निकल जाता, गुस्से का असुर निकल जाता, अहंकार का असुर निकल जाता, चिल्लाने का, कंप्लेंट्स करने का, वो भी एक असुर, वो भी चला जाता है ना। कितने सारे असुर एक शस्त्र से, एक अस्त्र से, सहन शक्ति, ना पिघलने का, ना ब्लास्ट होने का, लेने का ही नहीं है ना, वो करना और एडजस्ट होकर के चलना। इसे कई असुरी अवगुण हमारे अंदर संहार हो जाते। फिर नेक्स्ट आ गया जजमेंट पावर, जिसको बैलेंस से दिखाते सिंबल, जजमेंट का सिंबल बैलेंस। वेयर देर इज बैलेंस, न्याय, देर इज ब्लिस, है ना। बैलेंस है, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, उससे ब्लिसफुल जीवन जिएंगे। क्यों ब्लेसिंग्स? न्याय किया इसने, बैलेंसफुल, सबके साथ न्यायकारी होकर के चलना चाहिए। नो पार्शलिटी, जहाँ पार्शलिटी करते, इनजस्टिस, ना एक पलड़ा ऊपर है एक पलड़ा नीचे है, तो क्या हो गया? अन्याय हो जाता। अन्याय में ब्लेसिंग्स मिलेंगे, फिर ब्लिसफुल जीवन हो सकता नहीं। बैलेंस, सामने वालों को भी खुशी, मेरे को भी खुशी। जब दुकानदार ना, पुराने ज़माने में तो ऐसा बैलेंस ही रहता था, आजकल डिजिटल वाला एक बोल आता, लेकिन एक ज़माने में 2 पलड़े का वो बैलेंस, उसमें है ना, कस्टमर को भी खुशी एकदम बराबर, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बराबर रहे तो खुश, वो उनका आंक उधर ही रहता, ये कहाँ है, तो फिर एक्सेप्ट करके पे करके चला जाता। वहाँ बेगम बाज़ार में इतना कम रेट, आपके पास इतना महंगा नहीं, फिर जाओ उधर ही बोलते। टाइम बचा, पेट्रोल बचा, एनर्जी बचा,
कितने सारे काम कर सकते इससे, तो इसने सब कुछ करके लाया तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट, तो इसका भी पेट भरता, मेरा टाइम बचा। अंडरस्टैंड? दुआई भी दिया, खुद भी खुश क्योंकि मेरा टाइम बचा, मैं बहुत बिजी हूँ। तो बैलेंस, इधर नहीं उधर नहीं, एकदम बराबर। तो लौकिक जो जीवन है, जनरल लाइफ, पढ़ाई का, धंधा दौरी का, घर गृहस्थ चलाने का, उसका वो सब निभाने का, जिम्मेवारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोज आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसका। और नेक्स्ट सेल्फ का, खुद का स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का आध्यात्मिकता और जिस्मानी लौकिकता। लौकिक जीवन का जिम्मेवारियाँ और आध्यात्मिक जीवन का खुद का शांति, सहनशीलता, धीरज, क्लीनलीनेस, पावर टू विथड्रा, कर्म बंधी नहीं कर्म संबंधी बनकर चलने का, ये सारे मेरे अंदर डेवलप करके पर्सनैलिटी को मैं डेवलप करते रहूँ, मेरे लिए अन्याय नहीं करूँ। मैं सारा 24 घंटा एक ही तरफ लगा दूँ, एक तरफ कुछ भी नहीं लगाऊँ, मेरा पर्सनैलिटी बिगड़ रहा, तो एक खुशहाल का जीवन कैसे हो सकता? बैलेंस है, ब्लेसिंग से है, ब्लिसफुल है। तो आध्यात्मिक जीवन का, लौकिक जीवन का, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अपना पर्सनैलिटी के लिए, अपना मन बुद्धि को शांति से रखने के लिए, संस्कार को शीतल बनाकर चलाने के लिए मुझे समय देना ही है, साधना करनी ही है। जैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करते क्या, समय नहीं देते क्या, जाकर कंप्यूटर के सामने बैठते या ना धंधे में कस्टमर के सामने बैठ जाते, टाइम दे रहे ना, एनर्जी दे, और कैसे डील करना अभ्यास भी किए ना बड़ों से सीख करके। फिर यहाँ खुद के लिए क्यों नहीं बैठते हो? खुद के लिए क्यों अपना पिता परमात्मा के साथ साधना क्यों नहीं करते हो? बैलेंस नहीं है, बैलेंस आउट हो गया तो एक्सीडेंट हो जाता ना, तो उससे दुखी परेशान, तो है ना, टक्कर होता रहता लोगों के बीच में, संबंधों में है ना, फ्रिक्शन होता रहता, एक्सीडेंट्स, क्योंकि बैलेंस आउट हो रही। तो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ प्रोग्रेस, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट इज मस्ट। जितना उसके लिए प्रायोरिटी उतना मेरे लिए भी होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एनालाइजिंग पावर। सत्य असत्य का अच्छी तरह से परख सकूं, ये अपने अंदर आना चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा, मलिनता नहीं रहेगा, उतना स्पष्ट हम देख सकते। अगर मड है, गंदा पानी, उसके नीचे आपने कुछ रखा नहीं दिखाई देगा। अगर क्रिस्टल्स या कोई कलरफुल स्टोन्स है पॉन्ड में, वो सब स्पष्ट दिखाई देगा जब स्वच्छ पानी है। हमारा मन बुद्धि मलिन नहीं रहे, स्वच्छ रहे, तो सत्य असत्य का बहुत अच्छा एनालाइज कर सकते। एनालाइजिंग के बाद फिर हम जजमेंट भी बराबर करें तो वहाँ पर अच्छा हम आगे बढ़ते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पावर टू फेस। हमारी तरफ से कोई कमी कमज़ोरी से किसी को दुख नहीं दे रहे, निर्णय अच्छा कर पाएंगे, बैलेंसफुल जिएंगे, अच्छा स्वच्छ दिल, साफ दिल रख करके परखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को एडजस्ट होंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ओके। लेकिन सामने से परिस्थिति आकर गिर पड़ा, मेरे सामने आ गया, कुछ भूकंप का हो या गवर्नमेंट रूल्स का हो, कोई न्यूज़ का हो, अचानक कुछ धंधे में है ना, दुनिया में कुछ ऐसा हो गया जो धंधा रुक गया, बाहर से आया सिचुएशन, मेरे अंदर से ठीक है वो मैं संभाल लेना। फिर बाहर से आए, क्या करना? फेस इट, सामना करो। जब मुझे इसको सामना करना ही है, हिम्मत से सामना करो, वो भी पावर अपने अंदर आ जाएगा। ये भी बहुत बड़ा वेपन है, पावर टू फेस। फिर नेक्स्ट है कोऑपरेशन पावर। सर्व का सहयोग लेना भी, सर्व को सहयोग देना भी। सहयोग देना, सहयोग लेना, वही है रियल में शेक हैंड, है ना, एक दूसरे को शेक हैंड देते हैं, वो रियल शेक हैंड है। देना भी लेना भी, इससे कई बड़े बड़े कार्य भी बहुत हल्के रूप से ना क्लियर कर सकते हैं हम। बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्लियर कर सकते, बड़ा इश्यू सिंपल हो जाएगा। जहाँ एकता है वहाँ पर बल है। जहाँ अभी एक अंगार से आप खाना बना सकते,
आयरन कर सकते, रेल इंजन को चला सकते, क्या कर सकते एक अंगार से। वही कई अंगार है तो आयरन भी कर सकते, खाना भी बना सकते, है ना, रेलगाड़ी को भी चला सकते, कितने बड़े काम होता। तो एक एक को अलग करे तो एक एक ही है, लेकिन सबको मिलाओ तो कुछ एनर्जी क्रिएट होता है, जिससे कुछ बड़ा काम होता है। हम सभी का कोऑपरेशन से बिग पावर, बहुत बड़ा शक्ति है, उस शक्ति से बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं। सबके साथ मिलजुल के रहने का पावर आ जाती ये सभी शक्तियों से। तो ऐसे 8 शक्तियों का अस्त्र शस्त्रों से अष्टभुजाधारी जब हम बन जाएंगे तो हमारे अंदर का, है ना, महिष माना बुल बोलते हैं ना, भैंस माना मेल, उसमें तो वो है सींग वाला, तो उसको बुद्धि नहीं होता बुद्धि नहीं रहता उसको, तो माना बुद्धिहीन चेष्टा। तो ऐसा अज्ञानता का अंधकार, रात्रि में सो रहे हमारा बुद्धि ने तो सो रहा है, रात्रि चल रहा। तो हम ये अभ्यास करके ना 9 दिन 9 रात्रि, एक्चुअली बोलते 9 दिन भी है रात्रि भी दोनों, लेकिन बोलते 9 रात्रि। तो हम ये अज्ञान के अंधकार की रात्रियों को हम खत्म करके, असुरों का संहार करके, अष्टशक्तियों की प्राप्ति से फिर हम विजयादशमी मना सकते। ये कैसे हुआ, ये अष्टशक्ति कैसे प्राप्त हुआ? अस्त्र शस्त्र निराकार ज्योति बिंदु शिव पिता से मैं अपना मन बुद्धि को लगा करके, मैं अपना मन बुद्धि को लगाया, एकाग्र किया, तो परमात्मा शिव से मेरे को शक्तियाँ प्राप्त होकर मैं अस्त्र शस्त्रधारी बनी, अष्टभुजाधारी बनी। वही दुर्गा माँ, दुर्गुणों को संहार करने वाले दुर्गा बन करके हमारे अंदर का अवगुणों का मिटा सकते। तो यही है राजयोग। राजयोग से हमारे सारे दुर्गुण मिट जाएंगे, विजयादशमी हम रियल लाइफ में मना सकते, हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो आप सभी के साथ हम यही शुभ आशा रखते कि सच्ची सच्ची नवरात्रि मनाकर सच्ची सच्ची विजयादशमी आप सभी मनाएंगे। सभी को इन एडवांस हैप्पी दशहरा और नवरात्रियों की शुभकामनाएं। ओम शांति। हाँ, सभी भोग लेते हुए योग करना। अच्छा, ओके, ठीक है। 1-2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। रिलैक्स होके बैठिए, बैकबोन स्ट्रेट रखना, स्टिफ नहीं करना, रिलैक्स एंड बैकबोन स्ट्रेट। पीसफुल माइंड, यहीं पे रहना, मन को कहीं नहीं जाने देना। जो आप कमेंट्री सुनते, सुन करके उसको अंदर इम्बाइब नहीं करना, बाहर रिपीट नहीं करना, विजुलाइज करके एक्सपीरियंस करना। कमेंट्री को विजुलाइज करो, एक्सपीरियंस करो, इम्बाइब नहीं करो, रिपीट नहीं करो, बाहर अंदर। रिलैक्स। ओम शांति। मैं एक आत्मा इस शरीर में, भ्रुकुटी के बीच में मैं एक प्राण हूँ, सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। मैं एक लाइफ स्टार जैसा हूँ। ये सारा मेरा शरीर मुझे आत्मा के लिए एक वेश है, पार्ट बजाने के लिए एक व्हीकल है, जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं हूँ ड्राइवर, मैं हूँ आत्मा, द सोल, प्लेइंग माई रोल।
मैं आत्मा अभी थोड़े क्षणों के लिए मेरे पिता परमात्मा के साथ मन बुद्धि को जोड़कर शिव पिता से शक्तियां प्राप्त करूंगी। मैं जैसे एक प्राण ज्योति बिंदु हूँ। मेरा पिता परमात्मा भी निराकार है, ज्योति बिंदु है, वो परम शक्ति है, एक स्टार, परम ज्योति। मैं उस परम ज्योति से मेरा मन बुद्धि को जोड़ लिया, उनसे शक्तियां पाकर शिव शक्ति दुर्गुणों को संहार करने वाली अष्टभुजाधारी अस्त्र शस्त्रधारी शिव शक्ति दुर्गा जैसा बनकर मेरे अंदर को शक्तियां संचार कर रही, प्रसार कर रही। मेरे अंदर में जो आसुरी अवगुण है उन सभी का संहार करके विजय पा रही हूँ। बीइंग शक्ति, मुझे शक्तिवान बनकर शिव शक्ति बनकर के रहना, अष्टभुजाधारी अस्त्र शस्त्रधारी बनकर रहना। मैं आत्मा दुर्गुणों को हरने वाली ओम शांति। रिलैक्स। ओम शांति। मैं एक्सपीरियंस किया और जाना भी कैसे अपने अंदर की शक्ति को आह्वान कर सकते हैं। एक एक शक्ति ही एक्चुअली वो स्वरूप है उस माँ दुर्गा का, लेकिन काम तभी करेगी जब उसका आह्वान करके उसका उपयोग करेंगे। तो जैसे दीदी ने बहुत ही सुंदर रीति से इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो मन में जैसे बैठ गए हैं अब। तो अभी उनको याद करके उनको यूज़ करना है। तो आज की सेलिब्रेशन हम शुरू करेंगे तो दीदी के साथ। और आज एक पहले हमारे बीच में एक गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे सिस्टर विष्णुप्रिया, जो कि एक नेशनली अवॉर्डेड सिंगर है। पाड़ुता तिएगा में भी इन्होंने सेमीफाइनल तक पार्टिसिपेट किया है। और पिछले अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद she pivoted into a spiritual life and decided to dedicate her life to this organization. So for the past over 8 years now, she is a dedicated faculty at Shanti Sarovar and is continuing her passion, her skill of singing for godly service. तो आज हम सुनेंगे विष्णु दीदी से एक सुंदर गीत आज की सेलिब्रेशंस का आगाज़। नवरात्र की है
स्मरण कर ले, व्यर्थ विकल्प का उपवास धर ले, गुण शक्तियों का करना श्रृंगार है, यही नवरात्रि का सच्चा सार है, गर्भारास का अर्थ निराला, मिलके जीने की है ये कला, नवरात्रि की है पावन वेला, चारों दिशा में फैला उजाला। बहुत बहुत थैंक्स विष्णुप्रिया दीदी। तो जैसे उन्होंने बताया कि नवरात्रि का अर्थ है, तो उस अर्थ सहित हमें सेलिब्रेट करना है। सो फर्दर लेट्स हैव Kumari Nivedita on stage. She's just 13 years old but has already performed in 150 plus national and international competitions. She has been awarded with Kala Suman Award, Kala Rupya Award, Proud Icon Award, and not to miss 10 world records in international Carnatic and dance festivals, and she has also been awarded by the International Telugu Cultural Festival. So she was a world recorder. So let us move into the celebration mood with Kumari Nivedita. प्रियाये नमो नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिव प्रियाये नमो नमः ॐ ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिव प्रियाये नमो नमः
विष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्बमदम्बकदम्भवनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कुमारी निवेदिता का बहुत थैंक्स. So she has actually just rang the bell and we are right at the cusp of entering into the Maha Aarti that will start shortly. Before that, I would like to invite, we have two guests with us. We have retired Colonel Rajiv Chauhan ji, and who is the registrar of Mahindra University. So let us invite him on stage to hear few greetings. And we also have Major General retired Suresh Rakshit ji. So few greetings to inspire our audience, sir. To have come here for my second time, and I find that it's a fantastic organization where you teach so much to people, and we wish you the very best for Navratri, and to your families and everybody at home, that Ma Durga keeps you blessed and hale and hearty. Thank you very much. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. It's a very big privilege for us to be here today evening. I've been to this institution a couple of times earlier, and every time we are here, the experience is really very good. And we always look forward to coming here whenever we get an opportunity. We are not very far from this location. Mahindra University is within Hyderabad city itself, so it takes about 45 minutes drive also to reach here. It's very nice to be here when the celebrations of Navratri and the Durga Puja is commencing. I wish you all a good season and a good year ahead. Thank you very much. I'd like to invite Sister Vasanta to give a small token of thanks and of course outline the remaining program before us and the upcoming Dashera events. Greetings. Om Shanti. Pleasant good evening. Namaste. Namaste to everyone. So you all heard what we have to do. Of course, we have finished many days in Navratri, but still few more days remained. How we can become Shakti, right? It is not just invoking or doing puja or aarti for Shaktis, but if I can become a Shakti in my life, how would my life be? This is a big question. So how would I be in my life if I become a Shakti?
So think over it, not only thinking about it, but practicing the meditation, practicing the calmness, practicing the stability during the chaos is very important right now. As you are in the university, as a father of the university, a mentor, a guide for everyone, of course you have the duty of a registrar or whatever, but you have more than that a moral responsibility to look after everyone. So if I am a Shakti, if I invoke all the Shaktis, all the powers in my life, then automatically I know, because I have been connected with many universities, especially Hyderabad Central University. Whenever I do go, I was given the appointment on the 10th of October, 3 months back. I know how the registrar post would be, more than the vice chancellor. So it's very important role you are playing. So you're not just a person who is doing, but you are a soul who is playing that role. If every one of us think in that way, I am not just the role, but I am a soul who is in this journey playing my role, then you are a Shakti. Then you can give best for the organization, as well as you have the satisfaction innerly that I have done right for my job. So this is what the message for the Navratri and Dashara. So thank you for coming, and we look forward to have more negotiations with you, rather relationship with you, to do many services in the university also, as you have given permission for Nidhi also. She is the best student here also. So thank you for coming here, and thanks everyone for being here this evening. And as we move progress, I will just give you a brief about what will be happening this evening, as well as on this Thursday, which is Vijayadashmi, Dashara also. First, I'll give you the brief of Thursday program. So Thursday we will have a beautiful program in our auditorium. Actually, this program is supposed to be in the outside, in the outer side place. But because of the rain, we shifted this evening here in this lounge. So now we will go for the Maha-Aarti. So we will have Maha-Aarti beautifully. So in this time, take one pledge for your own self, because you are in the divine premises, very powerful place, very spiritual and filled with divinity. So make yourself also, fill yourself also with divine energy. And then after Maha-Aarti, you will have darshan of Durga Ji, and then you will take prasad, and also Batkamma, Garba, Dandi also will be there this evening. And again on the Thursday evening, 6 o'clock, we have a beautiful program inside the auditorium. So we have now we have the Murti of Durga Ma. If someone is there in live with all the divine powers, Durga in practical life, of course we all have to become like that, but we will have live deity show on Thursday evening in our auditorium. So beautiful program will be there, deity show, live deity show, and then the spiritual talk also, and meditation experience, which is very important in this place. And outside again we have Ravan Dahan, right? Which Ravan we have to burn, incinerate, because it's very important which Ravan we have to burn. So all those things we'll learn, and then we'll burn Ravan also outside, and Maha-Aarti, Garba, Dandiya, all those things will be there. So I request all of you to come on Thursday also, 6 o'clock in the evening. Beautiful evening in the divine premises. Okay? कितने आएंगे गुरुवार शाम को? अच्छा, कितने लोग दूसरों को भेजेंगे या लेके आएंगे? इसमें तो हाँ कर सकते हैं? नो?
इनविटेशन आया होगा कल शाम को ही आपके पास, अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन यू विल गेट द इनविटेशन ऑल्सो, सो दैट यू कैन पास ऑन द information to all the circles in your company, in your premises, and then bring everyone here, right? Thank you very much. Have a divine days ahead and fill yourself also with divinity. I request both brothers to get a token of love and gift from God's home. Please come. Arundhati. So we come to the end of the Sunday talk, but we still have Maha-Aarti, and for that we will proceed outside and go near the stairs in front of the Devi Murti. However, everyone please take a note, those who have come for the first time, to get further updates and get more information out the meditation course that is done here. You can register outside. There is a sister who will be there to guide you. So please note, if you have come for the first time, do register and you'll get further updates. Thank you. Happy Navratra, and we hope to see you on Vijayadashmi as well. So we will proceed for Maha-Aarti. Please do take prasadam before you leave. Om Shanti. Have a great week ahead.
जग